So now the fresh point we are going to start is the characteristics or what you can call as the features of the LLP. LLP के characteristics या LLP के क्या discuss करते हैं हम लोग यहाँ पे features discuss करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे हाँ देखो the first point of the feature of LLP is that LLP is considered to be a body corporate हाँ as I already told you that it is a similar feature to the company. Okay, company once get registered it become a body corporate, and in the same way limited liability partnership also once get registered or incorporated it become a independent corporate entity it become a body corporate. It will have the separate existence apart from its members. Okay, so देखो as per section 2(1)(d) of the LLP Act 2008 LLP is a body corporate है formed and incorporated under the act है एक खुद independent legal entity है जिसका खुद का पार्टनर से अलग एग्जिस्टेंस है which have a separate form that half of its partners and जिसको continuous existence है which have a perpetual succession so therefore change in the partners of LLP shall not affect the existence rights or liabilities of the LLP LLP के अंदर का कोई एक पार्टनर आया या गया या उसकी डेथ हुई या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया whatever it may be so change in the LLP structure is not going to make any kind of the impact on the existence of LLP or rights of the LLPs or duties of the LLP are not going to be affected there. Okay, so section 3 of the act provide कि LLP एक body corporate है जो separate है independent है अपने members से. Okay, it's a body corporate formed and incorporated under the LLP Act and it's a separate from the partners. LLP का खुद का एक अलग separate से existence है just as a company. Then second point we have on essential features of the LLP is a perpetual succession. Perpetual succession stands in a single word is that members may come and go, partners may come and go, but the existence of LLP continues. Only by the winding up the life of LLP can be brought into the end. Otherwise, the life of LLP goes on continuous in spite of the fact that अंदर के मेंबर आए गए, कोई मेंबर मरा, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मेंबर रिटायर हुआ इससे LLP के एग्जिस्टेंस के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. पार्टनर्स आते जाते रहेंगे बट LLP का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस रहेगा until it is wound up as per the provision of the LLP Act 2008. This is called as a perpetual succession. We were talking on that particular point कि suppose LLP के सारे पार्टनर्स घूमने गए एंड ऐसे हो गया कि बाबा सबके सब मर गए तो भी LLP का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा. 6 मंथ्स तक वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं. 6 मंथ के बाद नंबर रिज्यूम होता है कि चेक करेंगे. अगर नहीं रिज्यूम हुआ तो वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन करेंगे. अगर नंबर रिज्यूम हो गया मिनिमम रिक्वायरमेंट का तो LLP का लाइफ क्या हो जाएगा वो कंटिन्यू हो जाएगा वापस. So LLP can continue its existence irrespective of the changes in the partner, death, insanity, retirement, insolvency of the partner has no impact on the existence of a LLP. partner आया गया मरा रिटायर हो गया whatever इससे पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता. LLP वाले it is capable of entering into a contract and holding the property in its own name just like a company. LLP अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, LLP के नाम पे प्रॉपर्टी ली जा सकती है. और थर्ड पॉइंट रिपीट है देखो वापस एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है. LLP के एसेट्स खुद के हैं, LLP की लायबिलिटीज खुद के हैं. मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, LLP की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. वही पॉइंट रिपीट. The LLP is a separate legal entity and is also liable to the full extent of the assets. Separate legal entity है, full assets के लिए liable है, but liability of the partner is limited to the agreed contribution in the LLP. लेकिन partners की liability कैसी बोलो limited है. जितनी amount उन्होंने agree किया agreement में उतनी ही उनकी liability वहाँ पे रहेगी. In other words, creditor of the LLP shall be the creditor of the LLP alone. LLP के creditors पार्टनर्स के क्रेडिटर नहीं है. LLP के क्रेडिटर्स किसके क्रेडिटर है बोलो खुद LLP के क्रेडिटर है वो वहाँ पे. सेम रूल जो हमने कंपनी में डिस्कस किया था. आगे देखो म्यूचुअल एजेंसी इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. लेकिन यहाँ पे याद रखो no partner is liable on account of the independent or unauthorized action of the other partner. Thus, the individual partner are shielded from joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct. इसका मतलब देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिल रही है जो पार्टनरशिप में और कंपनी में और LLP में डिफरेंशिएट भी करती है.
इन अदर वर्ड ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ LLP अलोन। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं है। हमारे नॉर्मल पार्टनरशिप में एक पार्टनर गलती करता है तो लायबिलिटी सारे पार्टनर्स पे आ जाती है, बट यहाँ पे एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। पार्टनर्स एजेंट हैं किसके? LLP के। हाँ, लेकिन पार्टनर एक दूसरे के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लायबल नहीं रहेंगे। मेरी लायबिलिटी उतनी जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट। हाँ, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। एक पार्टनर के रॉन्ग के लिए अदर पार्टनर यहाँ पे लायबल नहीं होगा, जो कि हमारे नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है। हाँ, LLP एग्रीमेंट, ये भी पॉइंट गया है। नॉर्मली पार्टनर्स एक एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के बीच में और एग्रीमेंट से अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को डिसाइड करके लेते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर हाँ, शेड्यूल 1 के हिसाब से उनके एग्रीमेंट ना होने की वजह से राइट्स एंड ड्यूटीज किसके हिसाब से डिसाइड होगी बोलो? शेड्यूल 1 ऑफ द पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008 के हिसाब से। हाँ, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विद इन LLP आर गवर्न बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके उसको गवर्न करेंगे। LLP एक्ट 2008 प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्टनर टू डिवाइड द एग्रीमेंट as per their choice. हाँ, now in the absence of agreement, mutual rights and duties किससे govern होंगी? वो shall be governed by the provision of LLP Act 2008 के हिसाब से वो govern हो जाएगी वहाँ पे। हाँ, और आपको पता है एक्स्ट्रा LLP Act मतलब कहाँ से govern होगी? शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा उनके बीच में तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज शेड्यूल 1 ऑफ LLP Act 2008 के हिसाब से होंगे। हाँ, अब LLP पर्सन है, माना LLP लीगल पर्सन है, लेकिन वो नेचुरल लीगल पर्सन है क्या? LLP को किसी मदर के वूम से जन्म मिला है क्या ह्यूमन बीइंग के जैसा? नहीं। तो LLP को लीगल पर्सनालिटी किसने दी है बोलो? लॉ ने। तो LLP को हाथ है? नहीं। LLP को पाँव है? नहीं। LLP को ब्रेन है? नहीं। इसका मतलब LLP पर्सन है, बट कैसा वाला पर्सन है बोलो? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। हाँ, it didn't have its own brain or eyes or head to think about the activities of the limited liability partnership. Okay, so LLP is an artificial legal person है because it's created by the legal process. Artificial legal person है, legal process से create की गई है। It's clothed with the all rights and liabilities of the individual. Ultimately individual के rights and duties ही किसको मिल जाता है? LLP को। It can do everything which a natural person can do, except of course it cannot be sent into the jail. हाँ, नॉर्मली जो भी कोई नेचुरल पर्सन कर सकता है वो LLP सब कुछ कर सकती है, बट आप LLP को जेल में नहीं भेज सकते। किसको जेल में भेजोगे? बिल्डिंग को उठा के भेजोगे? हाँ, LLP सौगन नहीं ले सकती है। गीता पे रख के LLP सौगन खा रही, कौन सौगन खाएगा? बिल्डिंग। So LLP cannot take a oath. हाँ, LLP cannot marry. क्या एक बिल्डिंग की शादी दूसरे बिल्डिंग से कराई जा सकती है फर्नीचर की? तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है ना। सो LLP कांट मैरी। आपको शादी नहीं है तो डिवोर्स नहीं होगा। सो इट कैन नॉट गेट डिवोर्स, नॉर इट कैन प्रैक्टिस द लर्नड प्रोफेशंस लाइक CA और मेडिसिन एक्सेट्रा। हाँ, LLP एक इनविजिबल है जिसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनटैंजिबल है, इमॉर्टल है। उसका लाइफ एंड करना होगा तो उसका डेथ नहीं होगा ना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा। वो डिसॉल्व कैसे होगी बोलो? बाय लॉ प्रोसेस अलोन। हाँ, इट कैन बी डिसॉल्व बाय द लॉ अलोन। हाँ, बट नॉट फिक्शियस बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट्स। हाँ, बट हाँ, LLP कल्पना में है, इमेजिनेशन में ऐसे भी नहीं बोल सकता। हाँ, क्योंकि LLP इन रियल एग्जिस्टेंस है, बस उसका एग्जिस्टेंस आर्टिफिशियल लीगल एग्जिस्टेंस है। ओके, इसका एग्जिस्टेंस नेचुरल ह्यूमन बीइंग जैसा एग्जिस्टेंस वहां पे नहीं है। हाँ, सो दैट इज पॉइंट नंबर 6 कि LLP का लीगल पर्सनालिटी जो है वो आर्टिफिशियल है, जुरिडिकल है, लीगल है। हाँ, बट फिक्शियस है ऐसे बोलना गलत होगा। हाँ, देन आपको याद है जैसे अब वो लीगल पर्सन है ना, तो खुद के हाथ से तो साइन नहीं कर सकती ना बिल्डिंग। तो LLP की सिग्नेचर मतलब ही क्या होगा बोलो? LLP का कॉमन सील होगा, जैसे कंपनी को भी था, बट आपको याद है कंपनी का कॉमन सील अब कंपलसरी नहीं रहा। हाँ, पहले कंपनी को कॉमन सील होना क्या होता था? कंपलसरी होता था। हाँ, LLP being an artificial person can act through the partner and designated partner. LLP may have the common seal. May have, हाँ, may have मतलब compulsion नहीं है वापस। LLP may have the common seal if it decide to have. हाँ, thus it's not mandatory to the LLP to have the common seal. Same like a company, LLP को भी common seal का होना mandatory नहीं है, और अगर common seal होगा तो उसका गैर इस्तेमाल भी हो सकता है ना, जिसके पास है वो उसका रॉन्ग यूज कर सकता है। इसलिए
कॉमन सील को बहुत रिलायबल और ऑथराइज्ड व्यक्ति के पास रखना होता है. It shall remain under the custody of some responsible official and it shall be affixed in the presence of at least 2 designated partner of the LLP. हाँ, एक responsible official of the LLP के पास उसको रखना पड़ेगा और कॉमन सील अटैच करते हुए कम से कम LLP के 2 designated partners का सामने होना जरूरी है ताकि उसका कोई रॉन्ग यूज ना हो पाए. हाँ, देन ये वाला अगला लाइन आपको पता है, एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है बट एलएलपी के अंदर की पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या बोलो, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन. ओके, एवरी पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी, एजेंट ऑफ द एलएलपी. हाँ, बट नॉट ऑफ द पार्टनर. ओके, सो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कैसी रहेगी बोलो, लिमिटेड टू द अग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी. जितने रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन उतनी मेरी लायबिलिटी. सो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन. बट हाँ, एलएलपी की लायबिलिटी कैसी होगी बोलो, अनलिमिटेड. हाँ, सच ए कंट्रीब्यूशन मे बी ऑफ अ टैंजिबल और इनटैंजिबल नेचर और बोथ. कंट्रीब्यूशन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है. टैंजिबल फॉर्म में मतलब ध्यान में क्या, आपने कुछ पैसा वगैरह लगाया, और इनटैंजिबल फॉर्म में मतलब आपने अपने ब्रेन का यूज एलएलपी के लिए किया हुआ है. हाँ, देन नेक्स्ट वन, एलएलपी के योग्यता आपका डाउट था कि पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में फर्क क्या है. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास एलएलपी का बिजनेस मैनेजमेंट दिया हुआ है. हाँ, द पार्टनर इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द एलएलपी. हाँ, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कंप्लायंसेस. हाँ, वैसे तो सारे पार्टनर बिजनेस मैनेज कर सकते हैं बट सारा जो प्रॉपर लीगल कंप्लायंस होता है वो लीगल कंप्लायंस किसकी जिम्मेदारी पे डाला होता है, देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर की जिम्मेदारी पे डाला होता है. और कोई भी लीगल कंप्लायंस फुलफिल नहीं होता है, कोई रॉन्ग हो जाता है तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होंगे ना वो उसके लिए लायबल हो जाएंगे फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल कंप्लायंस. हाँ, ये भी रिपीट पॉइंट है. गया अगला पॉइंट देखो, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन द एलएलपी. हाँ, एवरी एलएलपी shall have at least 2 पार्टनर. पता आपको कम से कम पार्टनर कितने रिक्वायर्ड है बोलो, 2 पार्टनर. मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है. हाँ, and shall also have at least 2 individual as a designated partner of whom at least one क्या चाहिए हमें, resident of India, and there is no maximum limit on the partner in the LLP. हाँ, LLP पार्टनर के मैक्सिमम नंबर पे कुछ लिमिट वहाँ पे नहीं होगा. हाँ, देन नॉर्मली सिंपल सी बात है ना, कोई भी बिजनेस किसके लिए होता है बोलो, प्रॉफिट के लिए. हाँ, so the essential requirement of forming the LLP is carrying on lawful business करना है. of course कोई भी बिजनेस किस हेतु से किया जाएगा बोलो, प्रॉफिट. with a view to earn the profits, thus LLP cannot be formed for a charitable or non-economic purpose. be clear, LLP चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं हो सकती. कंपनी जैसे हमने देखी थी ना, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है या गारंटी कंपनी वगैरह, वैसे LLP is not going to be formed for non-profit concerns. हाँ, नॉन प्रॉफिट पर्पस, चैरिटेबल पर्पस के लिए LLP फॉर्म नहीं होगी. बिजनेस ऑफ LLP will be only for the purpose of the profit. हाँ, देन नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि LLP के अंदर अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो वो एक ऑफिसर अपॉइंट करके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करा सकता है. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ LLP बाय अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस. हाँ, किसी ने भी कंप्लेन किया कि इस LLP में कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है या कोई रॉन्ग हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं वहां पे. हाँ, देन नेक्स्ट वन देखो, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. हाँ, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो होता है ना वो एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसमें शेयर होल्डिंग चेंज किया जा सकता है. हाँ, एनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, हाँ, इंक्लूडिंग मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर ऑफ द LLP किसके हिसाब से होगा बोलो, LLP एक्ट 2008 के हिसाब से होगा. ये वाला पॉइंट अभी आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है 13 पॉइंट पे. हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट आपको याद है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. फर्म LLP में कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है. एंड रेस्पेक्टिवली तीनों की प्रोसीजर कौन से शेड्यूल में दी है, शेड्यूल 2, 3, 4. अ फर्म वांट टू कन्वर्ट इनटू LLP, शेड्यूल 2. private company want to convert into LLP, schedule 3. and unlisted public company want to convert into LLP, schedule 4 के हिसाब से वो प्रोसीजर होगी वहां पे. हाँ, देखो क्या आगे, a firm private हाँ company or unlisted public company would be allowed to conversion into the LLP in accordance with the provision of किसके हिसाब से बोलो, LLP Act 2008 के हिसाब से. हाँ,
नाउ आजकल ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अब जगह पे अलाउड है, वैसे सेम एलएलपी को भी है। हाँ, every form of the application of the document required to be filed or delivered under the act and the rule made thereunder shall be filed in the computer readable electronic form में आपको फाइल करने सारे डॉक्यूमेंट on the website of Ministry of Corporate Affairs, that is www.mca.gov.in। हाँ, एंड ऑथेंटिकेटेड, उसके नीचे सब डॉक्यूमेंट्स के किसकी साइन चाहिए बोलो, या तो पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी। और ऑथेंटिकेशन के लिए सिग्नेचर कौन सी रिक्वायर्ड होगी बोलो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर की मदद से वो ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट करना है। हाँ, एंड लास्ट पॉइंट भी रिपीट है, हमें गए हैं पीछे ऑलरेडी वो। हाँ, सेक्शन 2(1) डिफाइंस द फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कहाँ पे, इंडिया के बाहर है, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। हाँ, बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। हाँ, जिसको इंडिया में क्या बोलो वहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस जिसका इंडिया में है। हाँ, फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी। देखो इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कि एक फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। हाँ, हम लोग ग्लोबलाइजेशन की वर्ल्ड में है ना बहुत सालों से, तो यस आसानी से कोई भी एक फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनरशिप ले सकते हैं क्या, यस, क्योंकि फॉरेन एलएलपी एक इंडिविजुअल ह्यूमन सॉरी एक लीगल पर्सन है ना, तो हाँ एक फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी की पार्टनर बन सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि यस, फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन द इंडियन LLP. Okay, so 16 features are there of the what we have discussed as the limited liability partnership. Okay, it's a body corporate. Huh? It is having perpetual succession. It's a separate from its members. Huh? Partners are agent of the LLP, but one partner is not an agent of the other partner. Huh? If there is no LLP agreement between the partner, then their rights and duties are governed by Schedule 1 of the LLP Act 2008. Huh? LLP is a legal person, but it's an artificial legal person. LLP if want, it can have the common seal, but it's not mandatory. In LLP, the liability of LLP is unlimited, but the liability of the member is limited to their amount of contribution. Huh? The management of the business of LLP will be with all partners, but the responsibility of legal compliance will be with the designated partner. Huh? In LLP, you will have minimum 2 partner, and maximum limit no has been there. In minimum 2 partner, at least 2 partners should be designated partner, and out of that, 1 partner should be the resident of India. Huh? LLP cannot be formed for charitable purpose. Okay, so LLP business will be only for the profit purpose. Huh? If there is found something wrong going on inside the will of LLP, central government can appoint the competent officer and make the investigation in the LLP. Huh? The procedure of compromise and arrangement will be in accordance with the provision of LLP Act 2008. If any firm, private company, unlisted public company want to get converted into the LLP, it can get converted. Procedure of it is given in a schedule 2, 3, 4 of the LLP Act 2008. Can the documentation be done filing method? Answer is a yes. All the document of the LLP can be filed on the method of electronic mode on the website of MCA, which is www.mca.gov.in. And it should be authenticated by the digital signature or electronic signature of the partners or designated partner. And foreign LLP stands for LLP which is registered outside India but which have the place of business in India. And a foreign LLP can become a member of the Indian LLP भी वो बन सकती है. Okay, so that was essential features of the LLP हमने discuss किया. हाँ, वही essential features नीचे किस फॉर्म में दिए बोलो वहाँ पर advantages. Repeat material है. So what are advantages of forming the LLP form of business? Number 1, it is organized and operate on the basis of agreement के हिसाब से चलती है. Flexibility सबसे important चीज है. Without imposing detailed legal and procedural requirement, LLP form करना comparison में easy है, easy to form. All partners को बहुत बड़ा फीचर मिला है, लिमिटेड लायबिलिटी. हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, लाइक डिसॉल्व करना कंपैरेटिव टू कंपनी आसान है, सो इजी टू डिसॉल्व. दीज आर ऑल कंसीडर्ड टू बी द एडवांटेजेस टू फॉर्म द LLP वहां पे. सो इन ऑल यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 1 ओवरऑल LLP का खत्म होता है. कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल्स ऑफ द LLP, ये पॉइंट हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया. अब LLP को रजिस्टर कैसे करना, that is incorporation of the LLP is the next point which is there.